Welcome students. Welcome once again. I am Professor P.A. Yadav. Today I am going to get our next lecture of Process Food Engineering course number 122, that is radiation heat transfer. This is the third mode of heat conduction. So we have to introduce what kind of radiation heat transfer is taking place. How radiation heat transfer is taking place. So first of all, I already told you what is radiation, but once again I am going to tell you that what is radiation. So radiation heat transfer is nothing but transfer of heat from one place to another place by means of electromagnetic radiation. You can see that from here one I have given some simple examples. If the burning woods are there, so the flames coming out from that burning woods gives some radiation with the wavelength. You can see the wavelength of that radiation. From here, some sun is going to exhibit the energy towards the earth by means of some radiation. You can see the wavelength. So this kind of transfer of heat is called as radiation. क्योंकि radiation के द्वारा heat transfer हो रही है, wavelength के द्वारा depending on the electromagnetic waves के द्वारा heat transfer हो रही है. So सबसे important कि it is transfer of heat from one place to any other place. Not restriction that कि दो body का contact होना जरूरी है. Not restriction. Likewise, if you see that in conduction and convection, you need to be a product in contact with each other. But यहाँ पे सबसे important बात है, it is not necessary that the two bodies are in contact. You can say it is the transfer of heat from one place to another place. Whatever the distance apart doesn't matter, because heat जो transfer है by means of waves से, by means of जो invisible है, by means of electromagnetic waves. Visible है लेकिन depending on the wavelength. So this is your radiation heat. इसे कहते हैं radiation. So now we will go for the what kind of law is going to clear this kind of concept. कि कोई law है जो govern करता है इस type के phenomena को. Yes, there are several laws. वहाँ पे स्टीफन बोल्ट्जमैन का कंट्रीब्यूशन है, किरचॉफ का कंट्रीब्यूशन है, लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ का कंट्रीब्यूशन है, विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ का. देयर आर सो मेनी साइंटिस्ट come forward and put their opinion regarding the radiation heat. तो जो सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू में है, जैसे कि स्टीफन्स ने मोर क्लियर कॉन्सेप्ट किया है कि अगर आपको कितना अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर हो रहा है बाय मींस ऑफ रेडिएशन, ये जो मिलेगा आपको, देयर इज अ फॉर्मूला. तो वो जो फॉर्मूला है, वो जो स्टेटमेंट है, वो स्टीफन बोल्ट्जमैन ने इंट्रोड्यूस किया है. तो वो हम सबसे पहले देखेंगे. तो वी आर गोइंग टू सी राइट नाउ व्हाट इज स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ. स्टीफन बोल्ट्जमैन. So I will explain first of all mathematically. On that basis, we will make a theoretical statement. Okay. So यहाँ पे स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या है कि अगर कोई बॉडी हीट ट्रांसफर करती है तो उसे रेडिएशन के टर्मिनोलॉजी ने इमिशन बोलते हैं, क्योंकि वहां से इमिट हो रही है, क्योंकि देयर इज नो अदर सोर्स ऑफ दैट हीट. Yes or no? If you are getting the heat from a water, then water will have another source of that burner of the gas. Yes or no? कि यहाँ पे हीट ट्रांसफर हो रही है पहले बर्नर से, यहाँ पे यूटेंसाइल आपके कोई ऑब्जेक्ट को, फिर ऑब्जेक्ट से वाटर को, वाटर से फिर सराउंडिंग. लेकिन अगर सन से हीट आ रही है फॉर एग्जांपल, तो देयर इज इमिशन ऑफ हीट. देयर इज नो रिसोर्स अवेलेबल फॉर द सन. सन खुद रिसोर्स है. तो दैट काइंड ऑफ फिनोमेनन ऑफ हीट इज कॉल्ड एज इमिशन. तो यहाँ पे स्टार्ट होता है इमिसिव पावर ऑफ एनी बॉडी, और यू कैन से रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट टाइम. तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना पड़ेगा कि रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट टाइम मतलब इमिसिव पावर. यू नो दैट एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम इज अ पावर. एक तो रेडिएशन पावर, रेडिएंट पावर कह सकते हो आप, या फिर इमिसिव पावर कह सकते हो. तो इफ यू विल हैव द ब्रॉड सेंस ऑफ मैनर, वी विल गो फॉर इमिसिव पावर. अगर आपको समझ गया होगा कि ये सारी चीजें एक ही इमिसिव पावर. यहाँ पे इमिसिव पावर क्या रिप्रेजेंट करता है
heat, rate of transfer of heat is equivalent to emission power, because यहाँ से इमिशन होता है, यहाँ पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी हमें फॉलो करना है। हम यहाँ पे हीट ट्रांसफर भी बोल सकते हैं, रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, लेकिन अगर रेडिएशन ये कॉन्सेप्ट आ रहा है तो रेडिएशन कॉन्सेप्ट में हमें ऑब्वियसली वी हैव टू थिंक अबाउट दैट कि यहाँ पे इमिसिव पावर को हमें इंट्रोड्यूस करना है। So what is emissive power? You can consider as a Q. Q be emissive power. Emissive power of any body per unit area is directly proportional to fourth power of absolute temperature. यहाँ पे normal temperature नहीं है, absolute, जैसे कि केल्विन की टेम्परेचर स्केल पे हमें जाना है, मतलब हम जीरो नहीं लेंगे, हम 0 डिग्री सेल्सियस नहीं, 0 केल्विन से हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, तभी जाके हमें हीट का ट्रांसफर रेट मिलेगा। हम सेल्सियस पे अगर काउंट करेंगे कि दिस इज नॉट अ परफेक्ट रिलेशन, कि हम मान लो कि 30 डिग्री सेल्सियस का फोर्थ पावर ले लेंगे तो हमें आंसर नॉट लाइक दैट। यहाँ पे हमें एब्सोल्यूट टेम्परेचर लेना, और एब्सोल्यूट टेम्परेचर विल ऑलवेज इन अ रेफरेंस विद 0 केल्विन एज अ बेस ऑफ रेफरेंस। So the rate of transfer of heat per unit area by means of radiation is proportional to fourth power of the absolute temperature. So यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कौन होगा, ये सबसे मिस्ट्री की बात है कि हमने देख लिया कि सर फूरियर्स लॉ में थर्मल कंडक्टिविटी हमने इंट्रोड्यूस किया था, इफ यू रिमेंबर के, यस और नो। In case of convection we have, in case of Newton's cooling law we have introduced the convective heat transfer coefficient, yes or no. Well, in case of radiation heat transfer, what kind of constant will be there? So, यहाँ पे जो कांस्टेंट हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं उसका वैल्यू भी फिक्स होगा, जैसे कि के का वैल्यू डिपेंड होगा उस पर्टिकुलर मटेरियल पे, कि थर्मल कंडक्टिविटी यू आर चेकिंग फॉर मेटल और प्लास्टिक और एनी अदर मेटल, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ एनी काइंड ऑफ मेटल, आप कॉपर की देख सकते हो, आप स्टील की, आप टंगस्टन की, सभी की चेंज होगी, ठीक है, एच वैल्यू सभी की चेंज होगी। लेकिन यहाँ पे जो कांस्टेंट हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं उसका नाम है कुछ स्टीफन्स बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इफ आई एम गोइंग टू पुट हियर, I am going to remove the proportionality sign. I need to put one constant, you can say sigma, sigma t raised to 4, and that sigma suffix b, Boltzmann sigma, Boltzmann, Stephens Boltzmann, या फिर ब्लैक बॉडी का सिग्मा है, आप कुछ भी बोल सकते हो, आप बोल्ट्जमैन भी बोल सकते हो, स्टीफन्स बोल्ट्जमैन ने इंट्रोड्यूस किया, आप ब्लैक बॉडी का रेफरेंस ले रहे हो यहाँ पे, क्यों ब्लैक बॉडी का रेफरेंस ले, आई विल टेल यू लेटर, यहाँ पे क्यों ब्लैक बॉडी का कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो यू सी दैट कि अगर रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, इमिसिव पावर, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर को भी हम क्या कह सकते हैं, इमिसिव पावर पर यूनिट एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये हुआ थ्योरेटिकल स्टेटमेंट, हम बना देते हैं यहाँ पे, मैथमेटिकल स्टेटमेंट के ऊपर आपको लर्न नहीं करना है, मगअप नहीं करना है, ये याद रखना है, यहाँ से बनाते जाना है। देखो मैं बनाता हूँ, इमिसिव पावर और रेट ऑफ हीट ट्रांसफर पर यूनिट एरिया, यू कैन सी दैट कुछ तो एरिया कंसिडर करना पड़ेगा, पर यूनिट एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट इज दैट, फोर्थ पावर, एक दूसरा पावर तीसरा पावर नहीं, डायरेक्टली फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। सादा से टेम्परेचर नहीं लेना है, सिंपल वाला एब्सोल्यूट टेम्परेचर लेना है, जो कि केल्विन के स्केल पे डिपेंड है। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ योर स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। अभी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, इसका नाम देखेंगे क्या है सर, क्या कहते क्या है, सिग्मा बी स्टैंड्स फॉर स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये सब लोग are you getting my point? Sigma b stands for Stephens Boltzmann constant। वैल्यू भी फिक्स है, इसकी वैल्यू बहुत सिंपल है, याद भी रख सकते हैं आप। इससे पहले तो हम यूनिट डिफाइन करेंगे, ठीक है, तो यूनिट डिफाइन करेंगे, अगर यूनिट निकालना होगा आपको सिग्मा बी को सेपरेट आउट करना, इसकी वैल्यू और यूनिट दोनों भी साथ में निकालेंगे। अगर सिग्मा बी को सेपरेट आउट कर देते हैं हम, तो ये बनेगा क्यू अपॉन ए टी रेज़ टू 4, ये सर क्यू का यूनिट सभी को पता है कि किलो वैट होगा सर, वैट होगा, क्योंकि ये पावर है, पावर का यूनिट वैट होता है, इमिसिव पावर वैट
पर यूनिट एरिया मीटर स्क्वायर में जाएगा, T⁴ दैट मीन Kelvin⁴ में जाएगा। ये वो आपका यूनिट ऑफ स्टीफन फोर्स है। अगर ब्रॉड सेंस ऑफ मैनर में देखा जाए, इफ यू वांट टू कन्वर्ट वैट इनटू द किलोजूल, यू हैव टू राइट किलोजूल पर सेकंड, क्योंकि यू नो दैट किलोजूल पर सेकंड का वैट हो जाएगा आपका किलोवाट हो जाएगा। यू कैन यूज किलोवाट, वैट यू कैन यूज जूल पर सेकंड, यूनिट देखो जूल पर सेकंड, मीटर⁴, केल्विन⁴, दीज आर द यूनिट्स ऑफ स्टीफन फोर्स। तो वैल्यू क्या है? वैल्यू है 5.67, बहुत सिंपल वैल्यू 567 सीक्वेंस है, सीक्वेंस को पॉइंट देना है डेसिमल फ्रैक्शन में। वैल्यू देखते हैं 5.67 10 to the power -8 वैट पर मीटर स्क्वायर केल्विन⁴, और मैं आप लिख सकते हो जूल पर सेकेंड मीटर स्क्वायर केल्विन⁴। all about your Stevens-Boltzmann law. I hope you understand. Now we will go for other associated law with respect to this phenomenon. कि और कुछ लॉ का कंट्रीब्यूशन है क्या है? अभी मैंने बोला जैसे कि सिग्मा बी हम स्टैंड्स कर रहे हैं, तो ब्लैक बॉडी को समझना बहुत जरूरी है कि ब्लैक बॉडी होती क्या है, व्हाट काइंड ऑफ ब्लैक बॉडी होती है, और व्हाट इज द इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ रेडिएशन। तो एवरीथिंग वी विल कवर राइट नाउ, जस्ट so now we have seen that कि स्टीफन-बोल्ट्जमैन लॉ क्या है, रेडिएशन कैसे होता है, क्या कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे वेवलेंथ का मैटर होता है, यहाँ पे ब्लैक बॉडी इंट्रोड्यूस होती है। तो ब्लैक बॉडी हम देखेंगे कि व्हाट इज ब्लैक बॉडी। सो ब्लैक बॉडी इज द बॉडी व्हिच इज अ परफेक्टली इमिटर और परफेक्टली एब्सॉर्बर। ओके, यहाँ पे एक चीज आपको कॉमनली ध्यान में रखना है कि परफेक्ट इमिटर होता है, परफेक्ट इमिटर, और ये जो इमिट करता है, जो भी रेडिएशन इमिट करता है, और परफेक्ट एब्सॉर्बर भी आपको। तो परफेक्ट इमिटर एंड परफेक्ट एब्सॉर्बर क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे आपके 100% रेडिएशन एब्सॉर्ब हो जाता है। तो इमिशन एंड एब्सॉर्प्शन आर इक्वल इन केस ऑफ ब्लैक बॉडी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और जो भी इक्वल यूनिफॉर्म डायरेक्शन में, सभी डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल डायरेक्शन, ये जो इमिशन होता है, ये जो ब्लैक बॉडी कैन इमिट, ब्लैक बॉडी यू कैन से दैट कि ब्लैक बॉडी इमिट्स ऑल रेडिएशन, इमिट्स ऑल रेडिएशन इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। अगर आप क्लोज सरफेस में रखोगे तो सभी डायरेक्शन में आपको इमिशन मिल जाएगा। ये ब्लैक बॉडी का कॉन्सेप्ट होता है। इसलिए ब्लैक बॉडी का जो अल्फा होता है, दैट इज एब्सॉर्प्टिविटी, ये 1 होता है। इसका जो ट्रांसमिटिविटी होता है, ये 0 होता है। या फिर आप इसका जो ओपेसिटी क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टिविटी, रिफ्लेक्टिविटी जो होता है इसका, ये 0 होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि ब्लैक बॉडी का एब्सॉर्प्टिविटी 1 होगा, ट्रांसमिटिविटी 0 होगा, और रिफ्लेक्टिविटी भी 0 होगा। इमिसिविटी अल्टीमेटली 1 हो जाएगा, इमिसिविटी आपका अल्टीमेटली 1। तो दैट्स इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑल अबाउट ब्लैक बॉडी। अभी देखते हैं कि और कौन से लॉ जो है वो रिस्पॉन्सिबल है ये लॉ को, इस टाइप के फिनोमेनन को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो फिर एक लॉ आता है किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ ने भी बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूशन किया है। तो किरचॉफ्स का कंट्रीब्यूशन देखते हैं कि किरचॉफ्स में, किरचॉफ्स लॉ, so in this case Kirchhoff is telling us that कि इमिसिव पावर और एब्सॉर्प्टिव पावर जो भी है, इमिसिव एनर्जी एंड एब्सॉर्प्टिव एनर्जी, ये दोनों भी सेम। सो आई विल टेल यू अगेन, इमिसिव पावर ऑफ ए ब्लैक बॉडी, ऑफ ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी, यहाँ पे रेफरेंस में परफेक्टली ब्लैक बॉडी को ले जाएगा। इमिसिव पावर ऑफ ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज इक्वल टू, is proportional to absorptivity of a black body at a same temperature and wavelength। ये सबसे important, at the same temperature, वही temperature होना चाहिए, temperature and wavelength चेंज होना चाहिए।
तब आप देख सकते हो अल्फा और ई दोनों भी सेम है। अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू ब्लैक बॉडी प्रोपोर्शनल टू। तो समटाइम्स क्या होता है, जो हमने स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ देखा, अगर ब्रॉड सेंस ऑफ मैनर में देखा जाए तो Q अपॉन ए प्रोपोर्शनल टू टी रेज़ टू 4 है। यहाँ पे दो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होते हैं बहुत बार सरफेस की वजह से। अगर आप ब्लैक बॉडी नहीं लेते हो क्योंकि ब्लैक बॉडी की इमिसिटी भी 1 है, लेकिन अगर ब्लैक बॉडी के अलावा आप एनी अदर बॉडी लाइक ग्रे बॉडी like dark gray body, then other kinds of body like somewhat not black body, possibly not possibly black body। तो अगर इस टाइप के बॉडी में ये लॉ अप्लाई करेंगे तो और एक कांस्टेंट हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है, सरफेस भी मैटर करेगा। सो यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस करेंगे, एरिया ऑलरेडी है, सिग्मा ऑलरेडी है, यहाँ पे एप्सिलॉन आ जाएगा 1/4 माइनस P2। सरफेस का टेम्परेचर जहाँ से सोर्स है और जहाँ पे ट्रांसफर होगी उस पॉइंट का टेम्परेचर, ये दोनों भी टेम्परेचर, यहाँ से आपका स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ कंप्लीट हो जाएगा। ये जो कांस्टेंट है एप्सिलॉन 0, इसका वैल्यू हमने 1 कंसिडर किया क्योंकि हम जो लॉ डिफाइन करेंगे वो ब्लैक बॉडी के लिए डिफाइन करेंगे। तो ब्लैक बॉडी में आपको एप्सिलॉन 0 इंट्रोड्यूस करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन अगर हम अपार्ट फ्रॉम एनी अदर बॉडी, इफ यू आर गोइंग टू अप्लाई फॉर एनी अदर बॉडी, देन वी हैव टू इंट्रोड्यूस एप्सिलॉन 0। This is all about your application of Kirchhoff's law in elementary radiation difference। understand? Absorptivity, emissivity सेम होती है, वेरी सिंपल। Absorptivity is equal to emissivity, ये किरचॉफ्स का कहना है। आफ्टर दैट और एक जो लॉ है वो भी टेक अ पार्ट, दैट इज अ विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ। विंस का एक डिस्प्लेसमेंट लॉ है, ये भी बहुत बार आता है क्वेश्चन। डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे इस लॉ का कहना है कि अगर आप मान लो कि सोर्स से जो भी रेडिएशन आ रही है जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वो सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का अगर हमने टेम्परेचर देखा और एक रिलेशन निकाला, जितने भी कम लेंथ वाली, कम वेवलेंथ वाली वेव्स है उनका टेम्परेचर ज्यादा मिला है। मतलब अगर मान लो 10 एंगस्ट्रॉम यूनिट वाले टेम्परेचर ट्रांसफर करें तो वो मैक्सिमम करेंगे एज कम्पेयर टू 100 एंगस्ट्रॉम यूनिट। तो जितना वेवलेंथ कम है उतना टेम्परेचर ज्यादा ट्रांसफर होगा। तो विल्स ने कंक्लूजन निकाला, ही रिवील दैट wavelength of emitting radiation, the wavelength of emitting radiation is inversely proportional। I told you that कि जितना कम वेवलेंथ होगा उतना ज्यादा टेम्परेचर आपको ट्रांसफर होते हुए दिखेगा। The wavelength of emissive radiation is inversely proportional to absolute temperature। One more time, नॉर्मल टेम्परेचर नहीं लेगा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर को सारे चीजें डिफाइन होगी। यहाँ पे अगर लैम्बडा हम डिफाइन करते हैं, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/2। दिस इज द विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ, वेरी सिंपल। सिर्फ स्टेटमेंट आता है, नो मोर डिटेल, नो मोर फर्दर डिस्कशन अबाउट दैट। आपको ध्यान में रखना है कि वेवलेंथ और टेम्परेचर का इनवर्स रिलेशन होता है। किरचॉफ्स लॉ का एब्सॉर्प्टिविटी इमिटिविटी सेम होता है। स्टीफन्स लॉ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ द एब्सोल्यूट। So these are some basic laws which going to give some contribution in case of radiation heat transfer। Now one more law is there, I will tell you that law also। तो हम नेक्स्ट लॉ देखेंगे जो कि लास्ट लॉ होगा इन रिगार्डेंस विद द रेडिएशन, दैट इज लैम्बर्ट्स क्वेश्चन लॉ। ये भी लॉ so many times may be asked in your examination। You have to just remember the statement, I will conclude that statement also। Lambert's cosine law, according to Lambert's, what he has concluded, what he has observed, he has observed that कि suppose आपकी black body, for example हमें black body कंसिडर कर लेते हैं, मान लो कि यहाँ पे black body है, ठीक है,
तो ये एक ब्लैक बॉडी है, यहाँ से आपका सोर्स आ रहा है, इमिशन हो रहा है, तो ये नॉर्मल है इस बॉडी का परपेंडिकुलर, जिसे नॉर्मल कहते हैं। यहाँ से सोर्स आता है, वहां पे हम नॉर्मल ड्रॉ। अभी इंटेंसिटी जो भी होगी, ये ब्लैक बॉडी से जो भी हीट बाहर आएगी, जो भी इमिशन बाहर आएगा, उसका जो इंटेंसिटी है, कितने प्रमाण में बाहर आएगा, ये डिपेंड होगा कॉस्ट के वैल्यू के ऊपर, कॉस्ट के वैल्यू इन रिगार्डिंग टू द नॉर्मल, ये नॉर्मल है। अगर मान लो कि आपका ये ब्लैक बॉडी, ठीक है, आपका जो भी रेडिएशन है, अगर आपने नॉर्मल के डायरेक्शन में देखा तो यहाँ पे आपको फुल रेडिएशन मिलेगा, फुल रेडिएशन 100। जैसे आप इस नॉर्मल से एंगल बढ़ाते जाओगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको चेक करते हैं सर, यहाँ पे कितना रेडिएशन ये ब्लैक बॉडी ने थ्रो किया है, ये यू कैन सी दैट दीज आर द रेडिएशन। अगर इतने एंगल पे आप देखोगे तो आपको थोड़ा वैल्यू कम मिलेगा, क्योंकि आई एम ऑलरेडी टोल्ड यू दैट कि नॉर्मल पे मैक्सिमम हीट मिलेगा। ये जो ब्लैक बॉडी देगी तो नॉर्मल में मैक्सिमम आई मैक्स, यू कैन से दैट दिस इज आई मैक्स, ये वैल्यू 1 होगी। यहाँ पे सबसे मिनिमम होगा, आई विल टेल यू द रीजन क्यों मिनिमम होगा, आई विल टेल यू। यहाँ पे 0, क्योंकि लैम्बर्ट्स का कहना है कि इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, यू कैन सी दैट स्टेटमेंट हम जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन for black body is proportional to cosine of the angle between normal, proportional to cosine angle with reference to normal। इसका रेफरेंस लेना है, एंगल किसके साथ बना है, नॉर्मल के साथ बनाना है। अगर इसे देखा जाए तो ये आएगा आई इंटेंसिटी आई मैक्स के साथ डिफाइन हो जाएगा cos थीटा। अगर आप 90 डिग्री लेते हो तो cos 90 0 है, देखो ब्लैक बॉडी प्लेन में 90 0 है, लेकिन अगर आप 0 एंगल लेते हो, नॉर्मल के डायरेक्शन में एंगल कितना होगा, थीटा 0। अगर आप cos 0 लेते हो तो आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगा 1, आई इज इक्वल टू आई मैक्स। रेज एंड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग यू, कि जैसे आपका कोसाइन एंगल बढ़ता जाएगा वैसे आपका इंटेंसिटी जो है वो कम होगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल थीटा बढ़ेगा, लेकिन कॉस का वैल्यू cos 30 cos 60 cos 90 ये डिक्रीजिंग है। cos 0 1 है मैक्सिमम है, cos 30 यू नो रूट थीटा, cos 45 1 अपॉन cos 60 1/2 फिर 0, like that the readings are going to get decreases। so लैम्बर्ट्स ने क्या किया था, अगर आपको इंटेंसिटी निकालनी है cos का थीटा एंगल ले लो, अगर आपको 30 डिग्री पे चेक करना कितना इंटेंसिटी, cos 30 पुट कर दो, you will get the answer। so this is all about all the concern law regarding to the radiation heat transfer। this is all about our today's lecture। thank you one and all, thank you for listening this lecture, thank you।